عزیزان گرامی، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کے اندر ایک مہینہ رمضان رکھا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے اور لاتعداد گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ یوں تو عبادت اسلام کے اندر بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے ایک عبادت روزہ ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دوسری عبادت سے الگ اور ممتاز ہے، اس کی حیثیت الگ ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ اور دیگر جو عبادت ہے، مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ عبادت وہ ہے جو ظاہراً دکھلائی دیتی ہے، لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، عبادت کرنے والے کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص یہ عبادت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس عبادت کے اندر یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ریاکاری کر رہا ہو، دکھلاوا کر رہا ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس لیے کہ لوگ سمجھے بہت بڑا نمازی ہے، بہت اچھے ڈھنگ سے نماز پڑھ رہا ہے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں بہت بڑا حاجی، بہت خرچ کرتا ہے حج پہ، ظاہراً محسوس ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، اگرچہ وہ چھپ کر زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن دینے والے کو تو لینے والے کو تو محسوس ہوگا کہ فلاں شخص نے زکوٰۃ دی ہے، اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے آدمی کو یہ محسوس ہو کہ بہت بڑا سخی ہے، بہت زکوٰۃ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور دینے والے کے اندر یہ بھی ہو دکھلاوا کر رہا ہوں، اپنے آپ کو دکھا رہا ہوں میں سخی ہوں، تو بظاہر دوسری عبادت ہے اس کے اندر ریا اور دکھلاوا اور غیروں کے لیے کرنے کا شک شبہ ہوتا ہے۔ لیکن رمضان کے اندر یا اور دیگر موقع پر روزہ رکھنا ایک ایسی عبادت ہے جو انسان اور خدا کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، اور دوسری کسی مخلوق کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا کہ عبادت سے ہے یا نہیں ہے، یعنی روزے سے ہے یا نہیں ہے، حقیقت روزہ رکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے یا اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا یہ روزہ الگ ہے، دوسری عبادتوں سے الگ اور ممتاز ہے، اس کی حیثیت الگ ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تمام عبادتوں کا جو ثواب ہے وہ دوسروں کے ذریعے یعنی فرشتوں کے ذریعے دیا جائے گا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ کا بدلہ میں خود ہوں۔ اب سمجھے کہ جب روزہ کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ہو جائے تو پھر اس عبادت اس ثواب کا کیا کہنا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دوسری عبادت جو ہے اس کا ثواب 710 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو ثواب دینے والا ہے، مرتبہ دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، جنت عطا کرنے والا ہے، وہ خود ہی اس کا بدلہ ہو جائے تو پھر کیا کہنا، پھر اور کیا چیز کی اسے ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے روزہ، اس کی کیا خصوصیت ہے، اس لیے روزہ انسان کو رکھنا چاہیے۔ اور روزے دار کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلی جو امتیں آئی ہیں، میرے سے پہلی جو امتیں ہیں یعنی دوسرے انبیاء کرام کی جو امتیں آئی ان کے اندر وہ خصوصیت نہیں ملی جو میرے امت کے اندر آئی، اور وہ خصوصیت 5 چیزیں کیا ہے؟ 5 چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ 5 چیزیں میری امت کو حاصل ہے
اور दूसरी किसी उम्मत को हासिल नहीं हुई, वो फजीलत हासिल नहीं हुई। क्या चीज है? फरमाया पहली चीज ये समझे कि मुंह की बू, जब इंसान रोजा से होता है और उसका मैदा खाली होता है तो एक किस्म की बू मुंह से महस निकलती है, मैदे से बाहर आती है मुंह के जरिए। तो अल्लाह के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजेदार के मुंह की जो बू होगी वो मुश्क से ज्यादा क्या है, खुशबूदार है, उससे ज्यादा अहमियत की हामिल है अल्लाह के नजदीक। जाहिर सी बात है, जिससे मोहब्बत अदा और उसकी हर चीज पसंद आती है। चुनांचे जब रोजेदार रोजा रखता है और उसके मुंह से जो बू आती है वो भी अल्लाह के नजदीक महबूब और पसंदीदा चीज है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मेरी उम्मत के अंदर ये खुसूसियत हासिल है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत के रोजेदारों की जो मुंह से जो बू निकलती है वो मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। दूसरी चीज क्या फरमाया? दूसरी चीज फरमाया कि रोजादारों के लिए दरिया की मछली तक दुआएं करती रहती है, मगफिरत की दुआ करती रहती है इफ्तार तक। अब समझिए, एक रोजेदार से जाहिरन जो मखलूक है वो तो मोहब्बत करती ही है, लेकिन जो दरिया के अंदर जो मखलूक है वो भी उससे मोहब्बत करती है। और ये क्या चीज है? मोहब्बत का आला दर्जा है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से मोहब्बत फरमाता है, किसी से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने मखलूक के अंदर उसकी मोहब्बत पैदा फरमा देता है। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने फरमाया यहाँ तक कि मछली के अंदर अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत पैदा फरमा देता है और मछली भी उसके लिए क्या मग़फ़िरत की दुआ करती रहती है यहाँ तक कि इफ्तार का वक्त हो जाए। तो दूसरी खुसूसियत ये हासिल है। तीसरी खुसूसियत क्या है? तीसरी खुसूसियत फरमाया कि रोजादारों के लिए जन्नत रोजाना सजाई जाती है, आरास्ता किया जाता है। जाहिर सी बात है, जो मेहमान जितना अहमियत का हामिल होता है उसके लिए उतना ही क्या तैयारियां होती है। और रोजेदार की अल्लाह के नजदीक इतनी अहमियत है कि रोजाना जन्नत उसके लिए सजाई जाती है, बनाओ सिंगार रोजाना किया जाता है जन्नत का। और क्यों ना हो, क्योंकि रोजा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान राज है। तो रोजाना अल्लाह तबारक व तआला क्या है, जन्नत को सजाता है, किसके लिए? रोजादार के लिए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाते हैं कि अन करीब मेरे नेक बंदे अपने ऊपर से मशक्कतें उठाकर तेरे पास आएंगे। जन्नत से कहता है अल्लाह ताला कि अन करीब मेरे जो नेक बंदे हैं वो अपने ऊपर से मशक्कतें फेंक कर दूर करके और तेरे पास आ जाएंगे। जन्नत क्या चीज है? जन्नत के बारे में बहुत सारी तफसील है, लेकिन जन्नत के अंदर क्या है? जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तस्कीन के लिए हूर रखा है, पाकीज़ा औरत रखी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के अंदर जो हूर है अगर वो दुनिया के अंदर झांक दे तो पूरी दुनिया को रोशन कर दे। इतनी हसीन और जमील खूबसूरत है कि अगर वो दुनिया के अंदर झांक ले तो पूरी दुनिया को क्या है, रोशन कर दे। और अगर वो थूक दे तो 7 समंदर पीछे हो जाएंगे। क्या है? अगर वो समंदर के अंदर थूक दे तो 7 समंदर नीचे हो जाएंगे। और इसकी मिठास की एक रिवायत के अंदर अहमियत बतलाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई समंदर कड़वा भी है और उसके अंदर अगर थूक दे तो वो भी मीठा हो जाएगा। तो ये जन्नत के हूर के अंदर जो कमाल है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके जिस्म के ऊपर 70 लिबास होंगे। कितने लिबास? 70 लिबास होंगे। और उसकी जिस्म के अंदर इतनी खूबसूरती है, इतनी खूबसूरती है कि 70 लिबास के ऊपर से भी उसके जिस्म के अंदर का हिस्सा दिखाई देगा। इतना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया है। और फरमाया कि जो उसके ऊपर लिबास है वो लिबास के अंदर सबसे अदना जो है, कमतर जो मोती है, वो अगर दुनिया के अंदर रख दिया जाए तो पश्चिम से पूरब यानी पूरी दुनिया रोशन हो जाए। सबसे अदने दर्जे मोती की एक अहमियत है। और फरमाया कि जन्नत की जो हूर है उसकी खूबसूरती क्या है? फरमाया उसकी खूबसूरती ऐसी है कि जन्नती उसके हूर के शक्ल में चेहरे में अपना शक्ल देखेगा। इतनी खूबसूरत है, इतना चमकदार होगा कि आईना से ज्यादा साफ शफाफ अपना शक्ल जो है जन्नत की हूर के शक्ल में देखेगा, उसके रुखसार में देखेगा। इतनी खूबसूरत अल्लाह ने बनाया। तो कब आपको मुकद्दर होगा ये? जब आप नेक बंदे बनकर दुनिया से रुखसत होंगे, अल्लाह को राजी करके जब दुनिया से रुखसत होंगे तब होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जन्नत की जो हूर है उसके दुपट्टा की अहमियत इतनी है कि दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं उससे ज्यादा कीमत है उसकी, उससे ज्यादा अहमियत है उसकी। आज इंसान दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है, दुनिया के लिए भाग दौड़ कर रहा है, रोजे से कोई मतलब नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोजा नहीं रखते हैं दुनिया के चक्कर में, दुनिया का कारोबार करने के चक्कर में, कि अगर रोजे से रहेंगे तो काम मेरा रुक जाएगा, या जो काम होना चाहिए उस काम के अंदर कमी आ जाएगी। तो दुनिया के भागदौड़ और माल दौलत के चक्कर में वो जन्नत की इतनी बड़ी नेमत से अपने आप को पीछे कर रखा है। और सबसे बड़ी चीज कि अल्लाह की नाराजगी को अपने ऊपर ले रहा है। सबसे गजब की बात तो नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज होता है। सुनान से रिवायत के अंदर आता है कि अगर कोई शख्स रमजान के रोजा को छोड़ देता है और फिर उसके बाद पूरी उम्र वो कज़ा करता है, तब भी उसकी बरकत उसे हासिल नहीं हो सकती। अगर एक रोजा भी रमजान का छोड़ देता है और बाद में रमजान के महीने के बाद वो पूरी उम्र रोजा उसके रखता है, कज़ा करता है, फिर भी वो उस एक रोजे की जो बरकत है वो उसे हासिल नहीं हो सकती। समझिए कितनी अहमियत है रमजान के रोजे की। लेकिन फिर भी नादान लोग ऐसे हैं कि इस रोजे की कदर नहीं करते, इसकी अहमियत नहीं समझते और अपने ऊपर अल्लाह का गजब मोल ले रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से गालिबन रिवायत है कि फरमाते हैं कि मेरे पास दो शख्स आए और मैं सो रहा था, नींद के अंदर दो शख्स मेरे पास आए और मेरे बाजू को पकड़कर मुझे ले गए, और ले गए एक दुश्वार गुजार पहाड़ पर, जिस पहाड़ पर चलना दुश्वार हो, गुजारना मुश्किल हो। और ले जाने के बाद मुझे कहा चढ़िए इसके ऊपर। मैंने कहा मुझे चढ़ने की हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है। उन दोनों आदमी ने कहा कि मैं आपके लिए सहूलत पैदा करता हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर चले। जब दरमियान में पहुंचे तो चीखों पुकार की आवाज आ रही थी, शदीद आवाज आ रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कैसी आवाज है? तो उन दोनों ने बताया कि ये जहन्नमी की चीखों पुकार की आवाज आ रही है। फिर आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और आगे मैं चला। तो जब मैं आगे गया तो देखा कि कुछ लोग हैं जो एड़ियों के बल लटका दिए गए हैं और उसके जबड़े छिले हुए हैं और खून बह रहे हैं। मैंने पूछा उन दोनों से ये कौन शख्स है, किस बिना पर इनको ये सजा मिल रही है? उन दोनों ने बतलाया ये वो शख्स है, रोजा तो रखता था। कौन शख्स है? रोजा रखता था लेकिन इफ्तारी करने में जल्दी कर लेता था, ये वक्त की अहमियत नहीं समझता था ये, और इफ्तारी में जल्दी कर लेता था। जिसकी सजा अल्लाह तबारक तआला ने इसे दी है तो उल्टे लटका दिया है और उसके जबड़ों को छील दिया गया और उससे खून बह रहा है। तो समझे जब एक इंसान रोजा रखकर और उसकी टाइम की अहमियत नहीं समझा, उसको ये सवाब अजाब दिया जा रहा है, तो जो असर 9 रोजा नहीं रखता उसके साथ क्या मामला होगा, उसके साथ क्या अल्लाह के यहाँ गजब होगा, इसका जहन्नम के अंदर कैसे वो बर्दाश्त कर सकता है अपनी सजा को। आज इंसान न जाने क्यों अपने ऊपर अल्लाह के अजाब को, अल्लाह के गजब को मुसल्लत करता जा रहा है। कैसे कम नसीब बदबख्त इंसान है ये जहन्नम की सजा को अपने लिए मुतय्यन कर रहा है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबख्त है वह इंसान जो रमजान के मुकद्दस महीना को पाए और अपनी बख्शिश नहीं करवाए। बदबख्त है वो इंसान जो अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को पाए, दोनों को या किसी एक को, और उसकी खिदमत करके अपने आप को भी बख्शिश ना करवा पाए। और बदबख्त है वह इंसान जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दुरूद ना। इस वाकया का एक पस मंजर है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए। पहले मिंबर पर जब कदम रखा तो कहा आमीन, दूसरी पर कदम रखा फिर फरमाया आमीन, तीसरी पर जब कदम रखा फिर फरमाया आमीन। बाद में सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज आपके साथ वो मामला देखा जो इससे पहले नहीं देखा है, क्या माजरा है, क्या बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब पहले मिंबर पे चढ़ा तो उस वक्त मेरे पास जिब्राइल अमीन आए, और जब मैं पहले मिंबर पर कदम रखा तो उन्होंने बद्दुआ दी। क्या बद्दुआ दी? कि हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान का मुकद्दस महीना पाए और फिर भी अपनी बख्शिश न करवा पाए अल्लाह से, तो ऐसा शख्स बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। मैं जब दूसरे सीढ़ी पर कदम रखा मिंबर पर आगे,
तो फिर हजरत जिब्राइल ने बद्दुआ दी। क्या बद्दुआ दी? कि वो शख्स हलाक और बर्बाद हो जाए जिसके सामने उसके माँ बाप हो या दोनों में से कोई एक हो और उसकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बनाए। मैंने कहा आमीन। जब मैंने तीसरे पर कदम रखा तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और दुरूद न पढ़े। मैंने कहा आमीन। अज़ीज़ान किराम, एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र फरिश्ता है जिसे क्या कहने, फरमाते हैं कि उनका एक बाजू मशरिक में है और एक बाजू मगरिब में है, यानी पश्चिम पूरब में। और फरिश्तों के अंदर जलीलुल क़द्र फरिश्ता है ये, जिनका काम था कि अंबिया किराम के पास अल्लाह का अहकाम लाना। तो वो ऐसे फरिश्ता क्या है, बद्दुआ दे रहे हैं। और उस बद्दुआ पर और ज्यादा सख्ती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी। कैसे? आमीन कहकर, यानी मुहर लगा दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसा ही होना है। क्या है? ऐसा ही होना है कि अगर कोई शख्स रमजान का मुकद्दस महीना पाए और इस महीने में इबादत करके अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द न करे, अल्लाह को राज़ी न करे, अपनी बख्शिश न करवाए, तो हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, जहन्नम में चला जाए। हर इंसान को सोचना चाहिए कि ऐसा तो ना हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बद्दुआ पर मोहर लगा दी वो मेरे साथ खास हो जाए और अल्लाह तबारक तआला मुझसे नाराज हो जाए और जहन्नम का मैं मुस्तहिक हो जाऊं। हर इंसान अपने गौर करे, सोचे, गौर और फिक्र करे, कहीं ऐसा अमल तो नहीं हो रहा मुझसे रमजान के मुकद्दस महीने के अंदर। सिर्फ रोजा ही नहीं रखना गुनाह नहीं है, बल्कि और भी गुनाह है। कोई इंसान रोजा तो रखता है लेकिन वो जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, गाली गुलूज करता है, दूसरे की गिबतें करता है, बुराइयां करता रहता है, चुगली खाता रहता है, दूसरे का हक दबाता है, जुल्म करता है, सारी गुनाह है। सिर्फ रोजा रखने से बख्शिश नहीं होगी, रोजे के साथ जो लवाजिमात है, रोजे के जो तकाजे उसको भी पूरा करना जरूरी है, जब जाकर ये रोजा आपके लिए कारआमद और फायदामंद होगा। रमजान के मुकद्दस महीने में रोजा रखने के साथ साथ तरावी भी एक अहम चीज है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यकीन और सवाब की नीयत से रमजान शरीफ की तरावी पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। आज देखिए, पहले दिन तो माशाअल्लाह बहुत सारे लोग थे, दूसरे दिन कुछ और, उसके बाद तीसरे दिन तो और कम होते चले गए। ये क्या चीज है? इंसान की बदबख्ती है, कम नसीबी है ये कि इस ऐसे मुकद्दस महीना, सीजन का महीना है जिसके अंदर बेशुमार अल्लाह की रहमतें बरस रही है, धुआंधार बरस रही है। तो लूटने वाले लूट लो, जितना लेना सवाब ले लो, लेकिन कब नसीब वो इंसान है जो ऐसे मुकद्दस महीने के अंदर भी इबादत के पीछे अपने आप को पीछे कर रखा है। रोजा से कोई सरोकार नहीं, तरावी से कोई सरोकार नहीं, नमाज की उसके अंदर कोई अहमियत नहीं, तिलावत और जिक्र अज़कार की कोई अहमियत नहीं। इसलिए हर इंसान तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और अल्लाह के सामने झुक जाए, अपने आप को सिलेंडर कर दे। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, बख्शने वाला है। आज भी अगर तौबा करेंगे, हम इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह आज ही माफ फरमा देगा। अभी बहुत मौका बाकी है, रमजान का बहुत हिस्सा बाकी है। आज ही से अपने आप को तैयार करने की, जो कुछ हुआ कमी कोताही हुई या अल्लाह मैं माफी चाहता हूँ और आइंदा के लिए तौबा करता हूँ, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। अल्लाह ताला माफ करने वाला, बख्शने वाला है, गफूर रहीम। उम्मीद है कि हम तमाम हज़रात जो बात कही गई है उन पर अमल करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से खास ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करेंगे। वाक़िअत।